fairs, and primary marketing research and surveys, they reach out to the youth of our nation, promoting government-run apprenticeship programs like NEAM, NAPS, NATS, and BOAT. But they don't stop there. NETAP's foundation goes above and beyond, providing free education and career counseling, financial assistance, scholarships, and social security insurance to students aged 18 to 45 years. These are young men and women who may have been left out of society for various reasons. But don't just take our word for it. Hear it from the students who have benefited from NETAP's Foundation's programs. One student, Ravi, shares, "NETAP's Foundation changed my life. Their educational counseling helped me choose the right career path, and the financial assistance enabled me to pursue my degree without worrying about the cost." Another student, Priya, echoes this sentiment. "The scholarship I received from NETAP's Foundation was a game changer for me. It made my education possible, and for that, I will always be grateful." The driving force behind all these efforts is the founder and director of NETAP's Foundation, Mr. Dhruv Dubey. A serial entrepreneur, Mr. Dubey's vision is to make NETAP's Foundation a one-point contact for the country's youth, especially those in rural areas who are academically weak, socially disconnected, economically disadvantaged, or lack English and computer communication skills. With a mission to recruit, train, and counsel, with 100% employment to 500,000 youths through the apprenticeship degree program in the next 5 years, NETAP's Foundation is committed to facilitating education almost free of cost, 100% apprenticeship or job, and free social security like health and medical insurance, up to 10 lakh rupees. Here's your chance to be a part of this incredible journey. Visit the NETAP's Foundation website or contact them for more information. Because when you invest in education, you invest in the future. And the future is now. Okay, so now let's understand about the company's Why is mission and practical scope. education so crucial in today's world? And what challenges does the youth face in the current education system? Ponder on these questions as we delve into the intriguing story of NETAP's Foundation. NETAP's Foundation, a management consulting firm established in June 2008, has taken the baton to illuminate the importance of industrial and practical-based education to the youth of the country. This enlightening process is carried out through direct campus counseling, job and education fairs, and primary marketing research and surveys. The minds behind this noble cause are none other than the founder and director of NETAP's Foundation, Mr. Dhruv Dev Dubey, and Miss Ipsita. The vision of NETAP's Foundation is to become a beacon of free employment and education, especially for the youths who may be academically weak or socially disconnected. This also includes economically weak individuals, those with dummy degrees and diplomas who lack knowledge of English and computers, and the LGBTQI community. The mission of NETAP's Foundation is ambitious yet achievable. They aim to recruit, train, and counsel with a commitment to 100% employment for 50 lakh youths. This includes 20 lakh girls and the training of 10 lakh school-level students, educating them on digital technologies and investment. The objectives of the NETAP's Foundation are comprehensive and inclusive, aiming to support those left out due to various reasons such as financial constraints, academic weaknesses, social disconnection, poor communication skills, or their identity as transgender, including LGBTQI. The Foundation seeks to transform 90% of theoretical education into practical, remove financial barriers for parents for any education from 8th class to PhD level, and create entrepreneurs through practical-based education. Their goal is to source, counsel, and recruit 2 lakh youth annually, and send 25% of these candidates to overseas markets as trend resources. Furthermore, the Foundation aspires to create a minimum of 250 investors, improve the gross income of society through overseas employment and practical bases/apprenticeship-based education, and in turn, help boost our country's GDP. The NETAP's Foundation is dedicated to filling the gap in technical and professional education, reducing crime rate through youth engagement, and providing almost free education and free counseling. They are committed to removing the myth of English through practical education and training, and providing all the education and training in regional languages. The Foundation promotes and facilitates apprenticeship education and provides financially independent youth through stipend-linked education and training.
They also aim to provide financial and digital literacy training and secure them financially at 50% cost of the insurance premium. The NETAPS Foundation has a grand vision of providing an annual package of at least Rs 5 lakh per annum to all NETAPS candidates before the completion of the course, and to provide 2 foreign language training to all school teenagers and youths. With a motto of learn, earn, lead, the NETAPS Foundation is here to provide almost free education to all. For more information on job, scholarship, internship, campus hiring, training, placement and admission support, do visit the NETAPS Foundation blog page. To get in touch with them, you can contact them at netapsfoundation@netaps.in or call at +9. Okay, so I had described about NetApps Foundation and NetApps goals and objectives. So, but in simple language, इनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं let me introduce in just 2 minutes. एज इन दिस फाउंडेशन, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि नेटएप्स फाउंडेशन जून 2008 में स्टार्ट हुआ और प्रीवियसली इसका नाम थ्रेड इंडिया ग्रुप था। 2019 में इसके नाम हमने चेंज किया, नेटएप्स को कन्वर्ट किया। और बेसिकली जो हमारा फोकस एरिया है कि जो सोसाइटी में प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का गैप है और टेक्निकल एजुकेशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हाईली कॉस्ट प्रोग्राम्स हैं, उसके साथ ही बच्चे क्राइम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंडस्ट्रियल एजुकेशन के साथ बच्चों को मोटिवेट करें कि वो लोग इंडस्ट्रियल एजुकेशन साथ इंडस्ट्रियल एजुकेशन लें, मीन्स पढ़ाई के साथ जॉब करें। सो इज देयर एनीवन एल्स, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको हिंदी में प्रॉब्लम है? एनीवन एल्स? इज एनीवन एल्स फ्रॉम द साउथ इंडिया? नो, राइट? एनीवे, सो नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू कि हमें इस प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम को प्रमोट करना, रिक्रूटमेंट का मैक्सिमम में से कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट करना देना, और जिससे अधिक से अधिक बच्चे डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन करें, कंपनी में काम करते हुए सीखें और वर्किंग आवर्स के बाद सैटरडे संडे को वो अपना क्लास अटेंड करें। तो इन दिस वे दे विल बी एबल टू लर्न एंड अर्न practicals, and along with that they will be able to get secure their job as well. सो नेटएप्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो जो स्पेशली तौर पे सोशली डिस्कनेक्टेड हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो लोग एकेडमिकली पुअर हैं, फेल हो गए हैं, नक्सलिज्म, टेररिज्म या इलीगल एक्टिविटीज़ के विक्टिम्स हो गए हैं, या ऐसे डिग्री डिप्लोमा होल्डर जिनके पास डिग्री तो है बट उनको पास कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज न होने के कारण उनको एम्प्लॉयमेंट में चैलेंजेस आ रहे हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आते हैं। तो हम इनके लिए बेसिकली तौर पे काम करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का यही है कि हम कैसे इन यूथ्स को जो एकेडमिकली पुअर हैं, एकेडमिकली वीक हैं और इकोनॉमिकली भी वीक हैं, सोशली डिस्कनेक्टेड हैं, तो इनको हम कैसे हेल्प करें। इसी से रिलेटेड अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के माध्यम से समझना चाहें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो नेटएप्स का विजन है कि हम किसके लिए काम करते हैं, तो जो हमारा विजन है सेम हमारे प्राइम मिनिस्टर का है। लेट्स वॉच दिस 30 seconds ऑफ द प्रेजेंटेशन, व्हाट इज दिस प्रोग्राम इज फॉर होम। जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की का कैपिटल बनने की बन सकती है। सो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर विजन अबाउट द ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है स्पेशली उनके लिए जो लोग समाज में छूट गए हैं किसी कारणवश और उनको एम्प्लॉयमेंट में चैलेंजेस आ रहे हैं। दे डोंट नो हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट माई करियर। तो इसी विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव के देखते हुए हमने इस कंपनी का निर्माण किया और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डायरेक्टली कॉलेज टू कॉलेज, कैंपस टू कैंपस डायरेक्टली बच्चों को रिक्रूटमेंट करें, उनकी काउंसिल करें और उनको बोलें कि आप लोग पैसे का हेडेक मत लीजिए, पैसे की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बट आप लोग पहले दिन से जॉब को ज्वाइन करिए ट्रेनिंग एम्प्लॉय के रूप में, जहाँ पे आपको खाना, रहने का, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मिलेगा और आप पढ़ाई के साथ जॉब करिए। तो जैसा इस वीडियो में कुछ देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, अभी हम आपको प्रेजेंटेशन में देंगे कि हम डायरेक्टली जॉब फेयर और कैंपस हायरिंग के माध्यम से कैंपसेस में जाते हैं, वहाँ पे
जो स्टूडेंट्स या कम्युनिटी जो स्टूडेंट्स और जॉब सीकर आते हैं उनको बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हम आइए हमारे कंपनी में ज्वाइन करिए एज एन एम्प्लॉई। चाहे आप जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन या इंजीनियरिंग, जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, बट उसके साथ साथ कंडीशन ये है कि आप पढ़ाई जरूर करो, अदरवाइज आपका ग्रोथ वहाँ पे स्टेगनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दिस इज हाउ डू वी वर्क। इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए नेटवर्क फाउंडेशन हर एक स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए का फ्री में इंश्योरेंस, उसको डिग्री, डिप्लोमा, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग, फ्री इंग्लिश ट्रेनिंग, उसको जो फीस कॉलेज का देगा वो ईएमआई में देगा, जॉब लगने के बाद वो अपने कॉलेज का फीस देता है। तो दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स जो कि हम उस कैंडिडेट को ऑफर करते हैं। इसी से रिलेटेड एक मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके बाद ही मैं आपसे एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रोफाइल कि हम लोग यहाँ पे कैसे एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करना बहुत एसेंशियल है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नेटएप्स कंपनी क्या है, व्हाट वी डू एक्चुअली। ओके, अगर आप लोग इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी, इसमें हमने हमारी टीम ने डाला है netapps.in एजुकेशन आई पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड विद कोलैबोरेशन विद IBM, टाटा टेक्नोलॉजी एंड एंसिस इंडस्ट्री पार्टनर्स एंड एंकर पार्टनर्स। सो अब पढ़ाई भी और कमाई भी, and we are admission open in the department of BTech, diploma, engineering, management, pharma, nursing, yoga, library science, pharma, paramedical engineering, research, data science, AI/ML and manufacturing। so भारत में पहली बार फर्स्ट टाइम इन इंडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया कि पे कोर्स फीस आफ्टर अश्योर्ड जॉब ऑफर लेटर ऑफ प्लेसमेंट मीन्स अपनी नौकरी को सुनिश्चित करिए, ऑफर लेटर लीजिए, प्लेसमेंट होने के बाद ही कोर्स का फीस जमा करिए। इसके साथ ही इतना ही नहीं, हम हर एक बच्चे को फ्री फूड, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक बच्चे का रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि आज के डेट में नेटएप्स कंपनी 9,000 के आसपास इंडस्ट्री पार्टनर साथ मिलकर के काम कर रहा है। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उस पर भी आप लोगों को जानना चाहिए कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं। तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें भारत भर में बहुत सारे प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कैंपस रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट्स, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, then we are hiring zonal managers, regional managers, we are hiring state heads, different profiles parallelly। इसी चीज़ को देखते हुए नेटवर्क कंपनी जो 9,000 क्लाइंट के साथ एसोसिएट होकर के काम कर रही है, इसी में से हमारा जो अनदर सब्जेक्ट थियोरेटिकल है कि लगभग हमारे पास 1.86 लाख 1,86,000 हमारे पास वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं, जिस पे हम हायरिंग कर रहे हैं। तो वो भी वैकेंसी हम आपको थोड़ा सा शेयर करते हैं, देन हम प्रोसीड करते हैं। 1 सेकेंड। ओके, ऑल राइट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो ये स्क्रीन अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये सॉरी ये स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, बट अगर मैं इस स्क्रीन को ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा कि अगर अभी हमारे पास टोटल इंटरनल जो वैकेंसीज हैं वो हैं टोटल 28,000। मैं दूसरा स्क्रीन आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। 1 सेकेंड। ओके, सो वर्ड पेज के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर द वैकेंसी, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हमारे पास कौन सी वैकेंसी है, कौन सी वैकेंसी के लिए आप फिट होते हैं, उसके अनुसार यू कैन टेक द डिसीजन। नाउ ये हमारे पास वैकेंसी है जिसके लिए वी आर हायरिंग टू प्रमोट, रिक्रूट, काउंसल स्टूडेंट फॉर एडमिशन इन द नेटवर्क फाउंडेशन पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, फ्रेंचाइजी सेटअप एंड कॉर्पोरेट मार्केटिंग। हम लोग अपने कंपनी के लिए कैंपस रिक्रूटर्स एंड करियर काउंसलर्स की हायरिंग कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी 19,700 है। कोई भी अगर एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग कोई भी कैंडिडेट जो MBA किया हुआ है दैट इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस, बट अगर कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर उसके पास रीजनल लैंग्वेज का नॉलेज, उसके साथ ही इंग्लिश का नॉलेज प्लस कंप्यूटर और पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी है तो बोल अप्लाई कर सकता है। बट उसके साथ ही अगर वो MBA नहीं है तो MBA फिर उसको करना पड़ जाएगा।
सेकंड ऑप्शन ये है कि जो इसमें ग्रेजुएट है उसको हम 15,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस की जो सैलरी डिसाइड होगी वो डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ उसका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट या प्रीवियस कंपनी का सैलरी कितना था। फिर अगर जो एमबीए फ्रेशर्स आएंगे वो उनको हम 20,000 रुपये पर मंथ ऑफर कर रहे हैं, प्लस उनके साथ ई इंसेंटिव बोनस उसका है, जॉब लोकेशन होम डिस्ट्रिक्ट और होम स्टेट रहेगा। इसी तरह से हमारे पास जिला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और टीम लीडर की वैकेंसीज है, जिसका जो डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग का है। टोटल वैकेंसी 788 है और एमबीए और प्लस इसके साथ 5 ईयर्स का टीम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और कैंडिडेट का जो इसमें फिक्स सैलरी रहेगा 25,000 रुपीज़ प्लस इंसेंटिव बोनस सेपरेटली। इसमें जो जोनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स होंगे उनकी वैकेंसी टोटल 157 है। इसमें ग्रेजुएट 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, फ्रेंचाइजी सेटअप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो हम सैलरी ऑफर कर रहे हैं 30,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस इंसेंटिव प्लस बोनस अलग से ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो अलादा वैकेंसी है स्टेट बिजनेस हेड, स्टेट लेवल मैनेजर, जो कि टोटल वैकेंसी 28 हैं और इसमें एमबीए मैंडेटरी है। साथ ही साथ मिनिमम 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, फ्रेंचाइजी और कॉर्पोरेट टाइप का अनुभव होना चाहिए, टीम हैंडलिंग का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए और 35,000 फिक्स सैलरी प्लस इंसेंटिव बोनस हम ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ जोनल स्टेट हेड की हम वैकेंसी हमारे पास जो है या रीजनल हेड की बात कर रहे हैं, जिसमें 7 एक रीजनल मैनेजर को 7 स्टेट्स को हैंडल करना पड़ता है। टोटल 4 वैकेंसीज हैं, जहाँ पे हम ये सैलरी यहाँ पे रॉन्ग लिखी हुई है 35,000, यहाँ पे जो सैलरी है लगभग 80,000 के आसपास है, सॉरी 75,000 से 80,000 per month है, प्लस बोनस एंड इंसेंटिव इज द सेपरेटली। सो दीज आर द वैकेंसी दैट वी आर हायरिंग फॉर आवर कंपनी। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे क्लाइंट की वैकेंसी है 1,86,000 वैकेंसीज हैं, जिसमें हम 10th 12th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की डिफरेंट प्रोफाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड के आधार पर हम हायर कर रहे हैं। बट अभी जो आप सामने वैकेंसीज देख रहे हो ये सभी वैकेंसीज हमारी इंटरनल वैकेंसी है, न कि किसी क्लाइंट की वैकेंसीज हैं। नाउ टू इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत भर में पूरे भारत में पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम या अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम, सीखो और कमाओ योजना को प्रमोट करने के लिए और हमारे 9,000 जो क्लाइंट्स हैं उनकी वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए, प्लस इंटरनल जो अपनी 28,000 यहाँ पे सामने देख रहे हो 20,000 सुपर जो वैकेंसी, इस वैकेंसीज को क्लोज करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कैंपस रिक्रूटमेंट मैनेजर्स, कैंपस रिक्रूटर्स एंड करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जो अधिक से अधिक बच्चों को जो पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं उनकी रिक्रूटमेंट कर सके हमारे कंपनी के लिए, प्लस अपने क्लाइंट के लिए भी। So this is what the profile. Designation will be decided on the basis of candidate's profile. So before starting in detail, I have discussed मैंने आपको डिटेल्ड में जॉब डिस्कशन ऑलरेडी पहले भेज दिया है, बट क्या वैकेंसी है, क्या सैलरी रेंज है, वो हमने बता दिया। नाउ अगर आप लोग अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे पाएँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है, देन अगर आप हमें जस्टिफाई कर पाएँ कि वाई यू आर फिट फॉर द कैंपस हायरिंग प्रोफाइल। So let's start here with Ayaj. Hi Ayaj. Ayaj, are you there? Okay, Himanshu Tiwari. यस सर, थैंक यू सर। हाय हिमांशु। हिमांशु, हेलो, आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, अभी आप क्या करते हो और आपका यस अगर सर, कोई एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड माई इवनिंग। सेल्फ हिमांशु तिवारी एंड आई एम फ्रॉम रीवा मध्य प्रदेश। आई रिसेंटली completed my graduation from Riva Engineering College with Electronic and Communication branch. My last CGPA is 7.91, 8.01, sorry, 8.01, and recently I am preparing for government exam. ओके, Hello, yes sir, यस यस प्लीज। and सो also I अभी आप ये applied बताइए। for placement. यस सर, तो मैंने ओके, प्लेसमेंट के गॉट लिए इट। अप्लाई किया था। यस ठीक है। सर। सो हिमांशु, आप हमें ये बताइए कि आपका जो एकेडमिक स्कोर है बहुत अच्छा है, आप बता रहे हो कि 8 से ज़्यादा का CGPA है, तो 8.01, आपको यस, तो गवर्नमेंट हाँ, इंजीनियरिंग तो कॉलेज से आप था। वाई यू आर ट्राइंग टू गो इनटू द नॉन टेक्निकल, जबकि आपका करियर और एकेडमिक स्कोर अच्छा है, आपको तो अपने इंजीनियरिंग सेक्टर में यस जाना सर, चाहिए। यस सर, मैंने सर वो क्या कहते हैं प्लेसमेंट के लिए सर अभी अप्लाई किया था मैंने, तो मेरे को भी कोडिंग फील्ड में मिल नहीं पाई थी जॉब, जिसके कारण सर मैं भी क्विट करना चाह रहा था।
क्या सर, जो मेरा थोड़ा सा फोकस था गवर्नमेंट सेक्टर का, तो मैंने सोचा उसके थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लूँ, यदि हो सकता है तो ठीक है। लेकिन सर बेंगलोर, फिर अपन सोचे थे कि बेंगलोर निकल के वहाँ प्रैक्टिस करके भी अपना कहीं सेटल हो जाएंगे। क्योंकि सर ओके। रिसेंटली सर अभी अभी तो, यस सो सर। नाउ हमें आप ये बताइए हिमांशु जी कि आप अभी जी जॉब करना चाहते हो या गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो? सर, मैं अपनी तैयारी के साथ सर मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो दोनों भैया चीज़ सर क्या देखिए, है, अपनी तैयारी चल रही है। ओके हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक साथ दो पैरों पे नाव रखोगे ना, दो 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 नाव पे पैर रखोगे तो आप कहीं पे नहीं रह जाओगे। तो बेटर ये है कि अगर गवर्नमेंट की तैयारी या नहीं गेट की तैयारी कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि ये बेटरमेंट के लिए है। जॉब आपको बाद में भी मिल जाएगी, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट वंस। तो अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और आपका एज है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप गवर्नमेंट की तैयारी करिए। यस सर, अभी मेरी वाइल सर एज 21 ईयर्स है। तो मेरी एज देन ट्वेंटी अभी वन ईयर्स है आपके सर, लिए इसलिए टाइम है कि आप एकेडमिक स्कोर अच्छा है, एट का सीजीपीए है, आप गवर्नमेंट की तैयारी करिए। अधिक से अधिक ज़्यादा नहीं है, साल भर टाइम लगेगा, बट अगर आपको क्रैक कर लेते हो, और क्योंकि देखिए जी, मैं आपको सिंपली बता दूं, अगर आप जॉब पे जाते हो तो फिर एक साथ जॉब पे जाने आने का मतलब हो गया फिर मैं 8 घंटे का ड्यूटी, मतलब 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना। हाँ वहाँ मैं आपको टाइम, बिल्कुल आपके लिए टाइम ये नहीं दे सकता कि आप जा करके क्लास अटेंड करो, या जब बिल्कुल मीटिंग हो बिल्कुल। तो आप तो मीटिंग इसका अटेंड नहीं है करो। आप बट, समझ रहे हो? जी सर, जी जी सर, अभी तो रिसेंटली सर मैं आप भी अभी कटौती फ्रीलांस, काम करता हूँ। मैं आपको एक जी सजेशन सर। दूंगा डियर, कि आपके बेटरमेंट के लिए है, लेस्ट ऑफ द डिसीजन आपके लिए है कि यस सर। एम्प्लॉयमेंट मिलना बड़ी चीज़ नहीं है। आपका एक स्कोर अच्छा है, टैलेंटेड हो, मिल जी जाएगा। सर, सर हैव द मैं पेशेंस। सर अभी रिसेंटली सर, वन मेरी सेकेंड, कोचिंग वन चलती है सेकेंड, सर, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। वन सेकेंड, यस सर। लेट मी कंप्लीट। तो नाउ द इम्पोर्टेंट ये है कि अभी आप क्या करो कि अपने गवर्नमेंट पे फोकस करिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल कंसर्न है और आप कुछ पार्ट टाइम टाइप का जॉब देख रहे हो, तो हाँ डेफिनेटली फ्रीलांस वे में आप पार्ट टाइम ये सब काम कर सकते हो। अगर कोई बस कैंडिडेट सर आ रहे उसी हैं का जो सर। पढ़ाई, हाँ, अगर पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, आप उनको रिकमेंड कर दीजिए, हम आपको पार्ट टाइम का सैलरी दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार अगर करियर हिमांशु आप पीछे हो गए, एक बार जो जॉब में लग जाता है, जो पैसे के पीछे पड़ जाता है, तो वो फिर शायद वो उसको आगे निकलना बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सर वो मेरा सजेशन ये, बिल्कुल है। दिस इज अ फाइनल, बिकॉज हमारे हमारे पास वैकेंसीज है, तो हमें कोई रीज़न नहीं है कि आपको मैं रिजेक्ट करूं, क्योंकि मेरे पास फ्रेशर्स की वैकेंसीज है। बल्क रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली मुझे रिक्वायरमेंट तो है ही, बट और मेरा यस सजेशन ये है कि आप जो भी समझिए। सर। बट हालांकि हालांकि यस मेरा ये, मैं काउंसलर हूँ, तो मेरा काम है कि आपको राइट डायरेक्शन दूँ। रेस्ट ऑफ द डिसीजन अप टू बिल्कुल यू, सर। यस हिमांशु। सर, बल्कि सर ऐसा सर मैंने सोचा था कि फ्रीलांसर की तरह या पार्ट टाइम की तरह सर, क्या है सर कि पढ़ाई अपनी उसको पैरेलल लेकर चलते हैं और अपना काम भी कुछ न कुछ ऐसा कुछ करते रहे, ताकि अपने को बाद में दिक्कत नहीं जाती। कहीं मान लीजिए बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट सही हमें तरह कोई से प्रॉब्लम जॉब। नहीं है जो। ओके, गॉट इट। सो आप फ्रीलांस या पार्ट टाइम में ले लीजिए, क्योंकि आप अपने करियर अभी एंट्री एज पे हो, 21 में हो, तो अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने जॉब को फोकस करके ये तो सर पार्ट इसीलिए टाइम सर इसको मैं भी रखिए। टाइम देना चाह रहा हूँ। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप कॉलेज से जुड़े हो तो आपके यहाँ के आपको बच्चों की कमी नहीं पड़ेगी। किसी भी कॉलेज में आप खड़े हो जाइए एक दिन सैटरडे संडे को, तो आपको एक ही साथ 400-500 बिल्कुल बच्चे सर। मिल जाएंगे। और उनको काउंसिल आराम कर से। दिए, जो भी बच्चे, जो लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं, जो फेल हो गए हैं, जिनका बैकलॉग लग गया है, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, प्लीज़ कम विद मी। मैं आपको जॉब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ-साथ आप पढ़ाई ज़रूर करो। और क्योंकि आपने जो पढ़ाई किया उस हमसे नहीं लेना देना है, लेकिन कंपनी में जो आपको काम मिलेगा उसके अनुसार पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए, ये अगर सर कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड को है। जॉब अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट को जॉब बीटेक के आधार पे या ग्रेजुएशन के आधार पे उसको हम मैनेजमेंट में जॉब दे रहे हैं, तो उसको डिमांड करेंगे कि आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करो। अगर फार्मा में जॉब दे रहे हैं तो बोलेंगे फार्मा की पढ़ाई करो। और अगर वो करने के लिए तैयार हो तो आप हमें कैंडिडेट को रिफर कर दीजिए, जो उनकी फॉर्मेलिटी हम कंप्लीट करा देंगे, और आपकी जो भी पार्ट टाइम की सैलरी बनती है हम आपको दे देंगे। क्लियर? यस सर। और सर राइट। ऐसे ही अभी मतलब मेरे को, यस सर, जी जी, बोलिए। बाकी सर अभी मेरी जैसे मैंने जैसे कॉलेज जो प्लेसमेंट आते हैं सर, उसमें भी सर हम्म। अपन ने अप्लाई किया था और मेरा हुआ भी था, बट सर वहाँ बहुत दूर था। क्या कॉलेज और है जब आपके कॉलेज का दिमाग नाम में, क्या है? सर मेरा कॉलेज का नाम है रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, मध्य प्रदेश में है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा में है, रीवा डिस्ट्रिक्ट। यस सर। यस सर, गवर्नमेंट कॉलेज है मध्य प्रदेश में, ओके, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट एमपी ऑफिसर में। कौन है इसमें? ये सर सोनू नवगोत्री सर है।
ओके, आप उनसे उनका नंबर शेयर करिएगा या फिर उनको बोलिए कि नेटैप्स के एचआर से बात करिए, क्योंकि हमारे पास फ्रेशर्स की बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर वहाँ पे मैनेजमेंट के कैंडिडेट हो गए तो एक दिन हम कैंपस हायरिंग करके वहाँ से कैंडिडेट को पिकअप कर लेंगे। हाँ सर, ओके, बच्चे तो बहुत हैं अपने यहाँ अभी। यस सर, ऑल राइट, ठीक है। बहुत से थैंक बच्चे यू ऐसे हैं हिमांशु, जिनको आप लाइन पे जॉब के रहिए। लिए। जी जी, आप लाइन पे रहिए, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। अभी आप लाइन पे रहिए, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दूंगा, उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे और मैं आपको बताऊंगा सेकंड राउंड यस का सर, डिसीजन कैसे होगा। यस सर, यस सर। ओके, हु इज द थैंक नेक्स्ट? यू सर। पिंटू, पिंटू थैंक यू सर। शर्मा। हाय, थैंक यू, जस्ट बी ऑनलाइन हिमांशु। थैंक यू। यस सर। या, पिंटू Thanks शर्मा। for calling me, sir. हाय जी, पिंटू। thanks या, for calling me, sir. जी, या, मोस्ट good वेलकम। evening, sir. गुड इवनिंग। I would like to introduce जी, sir. I would like to introduce myself, sir. I am Pintu Bharadwaj from Agra. I have completed my MBA uh, with first division. I also completed BCA diploma in computer and MS Office from STP Computer Classes, Delhi. I have 2 year experience in Hindustan Unilever. My elder brother doing job in HDFC Bank, and my younger brother doing BSc from Tata APJ Abdul Kalam Technical University. Sir. Thanks for listening me, sir. ओके, सो पिंटू, जी सर। अभी आपने बोला कि आपने एमबीए एचआर किया, राइट? जी सर, नो सर, MBA फाइनेंस एंड ऑपरेशन सर। ओके, और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? 2 year का सर। 2 साल का एक्सपीरियंस है। कौन से सेक्टर में एक्सपीरियंस है आपका? फाइनेंस में ही? जी जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड रिलायंस रिटेल सर। जी ओके सर, ओके, फाइनेंस अच्छा, में आपने नहीं सर, मॉर्निंग मैं में, उसमें था सर। जी सर। शायद मॉर्निंग में आपने कॉल किया था हिंदुस्तान लीवर। आप ही अभी कैंडिडेट हो? जी 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 ओके सर, जी ओके, सर, पिंटू भारद्वाज सर। पिंटू भारद्वाज। ओके, जी गॉट इट सर। गॉट इट। ठीक है, तो अभी ये बताइए कि अभी जो आपका करंट कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान लीवर है या उसको ड्रॉप कर चुके हो? नहीं सर, ड्रॉप कर दिया सर मैंने। लास्ट वर्किंग कब था? लास्ट वर्किंग सर MBA से पहले का था सर मेरा। अभी मैंने MBA रिसेंटली में किया है सर, इसी मंथ में मेरा कंप्लीट हुआ है सर MBA। उससे पहले किया था मैंने सर, उसमें 2022 में उसको ड्रॉप किया था सर मैंने। ओके, सो अभी आप जी सर। कैंपस हायरिंग नॉन मैनेजर वर्किंग के लिए सर। अप्लाई किए हैं? जी जी सर। ओके, कैंपस हायरिंग का मतलब समझ रहे हैं मैं, कि यहाँ पे आपको कॉलेजेस जी में जाकर के डायरेक्टली कैंपस हायरिंग करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना जी पड़ेगा जी बच्चों सर। का, जी और अधिक सर। से अधिक बच्चों का जो पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं उनका ही रिक्रूटमेंट करना होता है हमारे यहाँ। जी 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 सर। जी सर। कंफर्टेबल हैं इसके लिए? जी जी सर, आई एम कंफर्टेबल सर। ओके, अभी आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है भरद्वाज जी? जी सर, 25,000 सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है अभी तक नहीं? जी सर, मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था सर। चलो ठीक है, यस्टरडे तो कर दिया आप था सर लाइन, मैंने। जी जी, ठीक है, आप लाइन जी पे सर। रहिए। मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करता हूँ, पिंटू जी, भरद्वाज जी। या, थैंक यू। जी जी सर, थैंक यू सर। अयाजुल, अयाज, अयाज, आर यू देयर? Hello. Good evening, sir. गुड इवनिंग। This side Yazur Ravi speaking. I am calling from New Delhi, and I have done MBA in HR, and I have more than 17-year experience in admin manager. हम्म, 6 year out of India, Gulf country, Saudi Arabia, and 11-year experience in India. Right now, I am not working. My last working month is July. ओके,
All right. So अभी your current location is Delhi NCR, right? Delhi NCR, yes. I All right. worked with And you yesterday. You dropped me a message and link also. okay, ठीक है. So what's your salary expectation? My last drawn salary is 33,000 per month. Okay. And your team size, how many members you have handled so far in the HR department? In HR department, I have 12%. In my organization, the capacity of employees 600. Okay. So you are comfortable in campus hiring, right? And counseling. Counseling, not a campus recruitment. Okay. So you are much comfortable in campus recruitment or campus counseling? Campus counseling. Campus counseling. Okay. All right. So your notice period is immediate, correct? Yes, I served my notice period. All right. So see, Ayaju ji, and even to Pintu Sharma, you are from which place? You told? New Delhi. Yes, sir. Agra, sir. Okay, you are Agra, from sir. Agra. So just to inform there जी सर. that we have the head office in Bangalore, and we are setting the office in different units, which were the location you are talking to me. Means we are planning to set up the office in one office in Delhi, one is in Lucknow region, another one is in what calls a southern Madhya Pradesh region. Right? Already In we New have in Delhi, huh, in sir. in no, already Greater Noida we have already bought the property. We are going to start very shortly. So Great. huh, till the time you have to for next 1 to 2 months you'll have to work remote environment. After that you will Okay. start working from the office. Okay. So I think कोई problem नहीं होना चाहिए इसमें. Correct? Correct, sir. जी सर. All right. थैंक्स राजू जी, आप लाइन पे रहे, मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करता हूँ. एक कैंडिडेट कोई और है, लेट मी चेक इट आउट विद दिस. Okay, sir. No problem. साहिल बाबा. हाय साहिल. हेलो, या क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताएं. ये मेरा नाम देवांश मिश्रा है. देवांश. देवांश, अपना अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है, अभी आपका एक्सपीरियंस क्या है. आईटीआई कंप्लीट है भैया, ये अप्रेंटिस चल रही है. देवांश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही. आईटीआई कंप्लीट है सर, अप्रेंटिस चल रहा है. ओके. सो अभी आपको जो आप कहाँ से बात कर रहे हो, आपको किस तरह का जॉब चाहिए. सर कैसा, मतलब क्या क्या जॉब के लिए मैं बता, आप मेरे को डिस्कशन कर दीजिए, मैं बता दूं क्या क्या चाहिए था. ओके, आपने सिर्फ आईटीआई किया है, राइट. आईटीआई किया है, डिप्लोमा के लिए एडमिशन ले लिया है. नो नो, मैं आप हमें ये बताइए, आपने सिर्फ आईटीआई किया है, आईटी ग्रेजुएशन भी किया है. ग्रेजुएशन तो नहीं सर, आईटीआई है प्लस 12th क्या है. ओके, करंट लोकेशन क्या है आपकी. मेरी रीवा है सर. रीवा से हो आप. तो आप हाँ है सर. ओके, आप एक काम करिए साहिल जी, आपको नंबर हमारा ऑफिस का होगा, और आप उस पर हमें जी जी 1 घंटे बाद फ़ोन कर लीजिए. मैं आपको गाइड कर दूंगा कौन सी कंपनी में आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो, और आगे पढ़ाई करना चाहते जी हो कि नहीं जी. पढ़ाई करना चाहते हो, जॉब चाहिए आपको. जॉब चाहिए सर, जॉब चाहिए. अगर जॉब मिल जाए तो पढ़ाई नहीं करोगे. पढ़ाई तो सर, पढ़ाई होती रहेगी फिर. नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैकेंसी है देवांश, वो है जी जॉब जी के सर. साथ पढ़ाई में. तो जो भी हम जॉब इंजीनियरिंग या आपके आईटीआई के आधार पे देंगे, उसके साथ ही आपको जॉब तो मिल जाएगी, खाना मिलेगा, ट्रांसपोर्ट मिलेगा, सब कुछ सुविधाएं मिलेगी. बट उसके साथ साथ मेरा सजेशन ये है कि आप पढ़ाई करने का डिमांड होगा तो आप कोई ग्रेजुएशन या कुछ पढ़ाई करोगे कि नहीं करोगे, मेरा क्वेश्चन ये है.
जी। ओके, 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 ठीक है। ठीक है, तो साहिल आप अपना माइक्रोफ़ोन बंद कर लीजिए। मैं आपकी बात समझ गया और मैं आपको सेपरेटली कनेक्ट करता हूँ। अपना माइक्रोफ़ोन बंद कर लीजिए प्लीज़। या थैंक यू। और हो सके तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए कनेक्ट कर लीजिए, बेटर रहेगा क्योंकि आपका नेटवर्क इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। थैंक यू। सुनो मीटिंग चल रही है ओके, हू इज़ द एल्स? कौन और सर। जॉइन किया अभी? शुक्ला बिजुआ, हृदय क्या नाम है शंकर आपका? शुक्ला सर। हृदय शंकर शुक्ला सर। हरदेश फ्रॉम लखनऊ, राइट? जी जी। हाय हरदेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड क्या है? अभी आप क्या करते हैं? काफ़ी दिन से आप फॉलो कर रहे थे, सर मुझे जॉब चाहिए, कुछ पढ़ाई करना है, क्या है आपका क्वेश्चन है? सर सर मैंने पढ़ाई की है, एमए तक पढ़ाई की है और बीएड भी किया है ओके। और एनआईओएस द्वारा डीएलएड भी किया है मैंने। संस्कृत और हिंदी हम्म। सब्जेक्ट है मेरा। ओके, मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। तो कोई इशू नहीं है, पीएचडी आप के पीएचडी साथ कर लीजिए। जी। पीएचडी मैंने कर आपका लीजिए। ये देखा था नेटआप्स, तो ओके, इसमें ये जानकारी मिली कि जॉब जॉब भी मिलती है और स्टडी भी कराई जाती है, तो मैंने मैसेज किया था। राइट। तो अभी आप जॉब कौन से लोकेशन में देख रहे हो? सर जॉब तो कहीं सर्च मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ। कहीं मीन्स वैसे आपका मैंने सिटी छः कौन सा है? 6 वर्ष तक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया है, तो अभी हिंदी और आपको संस्कृत टीचिंग में। का, ओके, सो अभी आपको टीचिंग का जॉब चाहिए या जो मैं जॉब दूँ उसको करोगे? जो मिल जाएगा उसको भी कर लूँगा। वैसे तो मुझे बेस्ट यही रहता है कि टीचिंग मिल जाए। ओके, सैलरी एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है? हाँ जी। सैलरी क्या एक्सपेक्टेशन आपका क्या है? सैलरी कितना चाहिए? इससे पहले मैं विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा था, वहाँ 13,800 रुपये दे रहे थे सर। सैलरी आपको कितना चाहिए वो बताइए। 15 प्लस मिल जाए तो ठीक है सर। अभी एक स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही होगी, वो स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ सर, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। तो इसमें देखिए कि इसमें कुछ वैकेंसीज हैं जो हमारे पास कैंपस रिक्रूटर्स की वैकेंसी है, जहाँ पे लगभग हम 20,000 रुपीज़ स्टार्टिंग सैलरी ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जी। पास जिला टीम लीडर की वैकेंसी है 25,000। इस ये वैकेंसी आप कर पाओगे? कैंपस रिक्रूटर का वैकेंसी है, जहाँ पे आपका बेसिकली काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो हाँ सर। 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा के बच्चे होते हैं उनको काउंसिल करके आपको उनको टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रमोट करना है। उनको प्रमोट करिए कि आप लोग पढ़ाई के साथ जॉब करिए और आप जी फाइनेंशियल का हेडेक हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको पैसा एक भी रुपये नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई के साथ जॉब करोगे तभी। सर, ये कार्य मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने उत्तराखंड में एक आईटीआई कॉलेज, एक कंपनी चला रही थी, वहाँ मैंने 7,000 बच्चे 6 साल में दिलाए थे। वो तो मोस्ट वेलकम है। आप इस जॉब को पकड़िए और साथ साथ आप जो पीएचडी की फॉर्मेलिटीज है हम दोनों फॉर्म आपको भेज देंगे, ज्वाइनिंग फॉर्म प्लस जी। पीएचडी का फॉर्म। आप अपना पीएचडी भी करिए और हमसे सैलरी भी लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है कि कहीं पर मुझे इसमें डायरेक्ट तरीके से सम्मिलित बच्चे से ना किया जाए, क्यों मैं बच्चे को मोटिवेट करके आपके थ्रू उसका एडमिशन करा दूंगा, तो आपकी ये जिम्मेदारी रहती कि आपसे वो बच्चा डायरेक्ट संपर्क कर सकता है या आपकी टीम से कर सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कंपनियां या अन्य जगह से जॉब नहीं मिल पाती है या पढ़ नहीं पाते हैं, तो सीधे थाना या कोतवाली में भागते हैं एफआईआर कराने के लिए कि इनके द्वारा हमारे देखिए, साथ धोखाधड़ी करी गई। ओके हृदय, मैं आपको बता दूं, जी। प्रॉब्लम तब होता है जब कोई कंसल्टेंट जॉब के नाम पे पैसे लेता है। हाँ सर, कंसल्टेंसी इंडियाज लेकिन यहाँ इंडियाज पे लीगल कंसल्टेंसी थी एक, वही उसके साथ वही मैंने वर्क किया था और मैं फंसा, 3 बार एफआईआर होते बचा। नहीं, आप इस चीज़ को सुनिए, ध्यान से सुनिए। जी प्रॉब्लम तब होती है जब कोई ये कहे कि आप पैसे दीजिए तब मैं आपको जॉब दूंगा। जी जी। लेकिन ये जो, अगर आपने हमारा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा तो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा है, राइट? सर आपकी ही कंपनी के एक व्यक्ति ने हमसे बताया था, पहले बताया था 5,000 रुपये पर बच्चे का जमा होगा, फिर उसके बाद बताया था कि 14,000 जमा होगा। लेकिन मैंने कंपनी का नाम, आपके इसका एनजीओ का नाम सुना था, तो मैंने नेट पे सर्च किया था, आपको डायरेक्ट फॉलो किया।
अब तो क्लियर हो गया ना, अब कौन किससे बात किया था जी आई जी डोंट नो, बट अब तो क्लियर जी हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल सर। ऑलराइट, चलो। नाउ डियर, मेन इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा सा हम एक प्रेजेंटेशन समझते हैं। देखिए, मेन इम्पोर्टेंट हमें अभी एक क्वेश्चन आता है कि जी नेटएप्स कंपनी को इतने सारे काउंसलर्स और रिक्रूटर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? जी सो इसका मेन रीज़न ये है कि देखिए जी, हमने जब बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट किया था, हमारा जो मेन फोकस एरिया था जी वो ये था कि हम अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, अधिक से जी अधिक लोगों को हम प्रैक्टिकल बेस्ड, क्योंकि कॉलेजेस में क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो सर। उनको हम प्रैक्टिकल एजुकेशन कैसे दे सकते हैं? तो उसका हमारे पास तरीका ये निकला कि जो हमारे पास कंपनीज हैं, हम उनको ही जी कैंडिडेट दे दें, उनको बोल दें कि आपको जैसा कैंडिडेट को ट्रीट करना है, जिस तरह से कैंडिडेट को मोल्ड करना है, आप मोल्ड करिए, अपने हाँ सर। अनुसार ट्रेन करिए, जी उसको रोजगार दीजिए, उसको सीखने के दौरान कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 रुपए का उसको स्टाइपेंड दीजिए, खाने को दीजिए, अगर हो सके तो जी रहने का भी दीजिए। जी तो जब कैंडिडेट फाइनेंशियली, अपना माइक्रोफोन बंद कर लिए प्रदेश, तो जी जब कैंडिडेट, अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज, जी हृदय शुक्ला, अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए प्लीज। तो नाउ द थिंग इज कि ये जो प्रॉब्लम है सोसाइटी का, कि अगर कॉलेज प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, जी कॉलेज प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कॉलेज बच्चों को से लाखों रुपए तो ले रहे हैं, बट उनको मजबूरी में लोन लेना पड़ रहा है, कि कभी कभी पेरेंट्स को एजुकेशन लोन के नाम पे उनको अपना ज़मीन तक बेचना पड़ता है। लोग तब भी उनको, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स और यूथ्स ऐसे हैं कि वो लोग डिग्री डिप्लोमा तो ले लिए हैं, बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने के कारण वो लोग अल्कोहल और ड्रग के विक्टिम्स हो रहे हैं, क्राइम के विक्टिम्स हो रहे हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने रूट लिया कि हम रूरल एरिया, कॉलेज टू कॉलेज, पंचायत भवन टू पंचायत भवन, ब्लॉक टू ब्लॉक, जॉब फेयर के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, नेशनल एम्प्लॉयमेंट जॉब फेयर के माध्यम से, या डायरेक्ट जॉब फेयर के माध्यम से हम उन बच्चों की काउंसलिंग करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि आप लोग प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन लीजिए, और जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो हम सॉर्ट आउट कर दें। मीन्स आपको हम जॉब दे रहे हैं और आप उसी जॉब से अपनी पढ़ाई करिए, अपना जो भी सैलरी मिले उसी सैलरी से अपना फीस भरिए, आपको किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आएगा। और खाना हम इसीलिए दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इसीलिए दे रहे हैं, हॉस्टल भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको किसी तरह का हेडेक ना हो, आप अपने एजुकेशन पे फोकस करो और आप अपने जॉब पे फोकस करो, अपने प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करो, जिससे सोसाइटी में एक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्रिएट हो सके और उसको किसी तरह चैलेंजेस, उसको पढ़ाई करने के लिए लोन या एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी को पैसे न देने पड़े। क्लियर हो गया? सो इस हाँ विजन के सर साथ क्लियर हम, हो गया। अच्छा सर, ये जो पीएचडी का मेरा कोर्स होगा, इसकी लोकेशन क्या होगी, किस यूनिवर्सिटी से और कहाँ से कराया जाएगा, और क्या वे हृदय यूनिवर्सिटियां हृदय यूजीसी से अप्रूवल हैं? हृदय, ये 1-to-1 मीटिंग नहीं हो रही है, ग्रुप मीटिंग हो रही है। देयर आर अदर कैंडिडेट्स आल्सो देयर फॉर द ओके 1-to-1 क्वेश्चन, फॉर योर पर्सनल क्वेश्चंस आप हमसे सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं। लेट मी गिव द कॉमन आंसर। ओके ओके। ओके, तो नाउ द थिंग इज कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए और अधिक से अधिक यूथ्स, अधिक से अधिक टीनेजर्स इसका बेनिफिट ले, तो हमने कंप्लीटली फ्री मॉडल को डेवलप किया और बच्चे आएँ, वे कंपनी को ज्वाइन करें एज ए ट्रेनिंग एम्प्लॉय, और आप लोग डायरेक्टली कैंपस हायरिंग के माध्यम से उनको काउंसलिंग करिए, उनको मोटिवेट करिए कि आप लोग पढ़ाई करिए, और एक भी रुपये नहीं लगेगा, बट ये है कि पढ़ाई के साथ जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि हम जॉब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डिग्री नहीं देगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जॉब करो, सैलरी उठाओ और उसी सैलरी से अपना फीस कॉलेज का पे करो। इस तरह से आपकी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दिस इज द रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी से रिलेटेड लेस्ट एक प्रेजेंटेशन है, हम थोड़ा सा देखेंगे कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेटवर्क फाउंडेशन का जो वर्किंग मॉडल है
वो कैसे काम करता है। और 1-2 हम काउंसलर जो हमारे अभी आज और कल अभी लखीमपुर खीरी या आपके यूपी में फिर और डिफरेंट लोकेशन में जॉब फेयर काउंसलिंग किए हैं, वे किस तरह से काउंसलिंग करते हैं। लेट्स वॉच द प्रेजेंटेशन हियर, 1 सेकंड। माननीय ओके, कोई यहाँ पे है जो कि नैप्स के लिए काम किया है कभी? एनीवन इज हियर जिसने नैप्स के लिए काम किया हो? ओके, ऑलराइट, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन देखेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी। प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का शुभारंभ। युवाओं को कुशल बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सबसे उत्तम माध्यम है। अप्रेंटिस कार्यस्थल पर काम करते हुए न केवल सीखता है बल्कि वो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी पाता है और एम्प्लॉयर को भी इस स्कीम से बहुत लाभ मिलता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का मकसद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और अप्रेंटिसों की वर्तमान संख्या 2.3 लाख को बढ़ाकर 2020 तक 50 लाख करना है। जो ऊपर जाएं, उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की हब का कैपिटल बनने की बन सकती है। 4 वर्ष में 50 लाख प्रशिक्षित कार्यबल सृजित करने हेतु अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। ये पहला मौका है जब भारत सरकार ने आगे बढ़कर इस नई पहल की शुरुआत की है। एम्प्लॉयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेने वाले हर अप्रेंटिस को कम से कम प्रति माह 7,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड दे रहा है। भारत सरकार प्रत्येक एम्प्लॉयर को इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित स्टाइपेंड का 25% या अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह प्रति अप्रेंटिस के हिसाब से दे रही है। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं, साथ ही अपने विकास को एक नई गति दे रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल के कोर्सेज को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ट्रेनीज पास्ड आउट फ्रॉम ITI कोर्सेज, स्कूल पास आउट कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर इस स्कीम से युवाओं को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। इसका लाभ उठाकर युवा सफलता की नई इबारतें लिख रहे हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम युवाओं को कौशल से जोड़कर कुशल भारत बनाने के सपने को साकार कर रही है, उनके कौशल को निखार रही है, उन्हें जीने की नई राह दिखा रही है और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों को सार्थक कर रही है। The dream of Make in India now looks like a shining reality. As the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Human Resource Development come together for a common goal to skill India's youth. Taking a step forward in training the country's youth in order to make them employable, the Government of India has introduced the National Apprenticeship Promotion Scheme, NAPS, a scheme that aims to impart hands-on training to the youth through an effective apprenticeship training program. The program will not only benefit graduates and undergraduates, it will also be extended to schools and other educational institutions in the near future. Participants of the program
Both individuals and organizations will be benefited in several ways. Benefits to the candidates include on-the-job training by industry experts, freedom to decide a profession of their choice, government-prescribed stipend, certificates by the government and the industry. सो अगर आप लोग इस स्क्रीन को देख रहे होंगे तो इसमें जो कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेंगे, जो पहले दिन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट मीन्स डायरेक्टली बाय द कंपनी द्वारा, कैंडिडेट को चॉइस मिलेगा कि किसी डिपार्टमेंट में HR, मार्केटिंग, सेल्स, इंजीनियरिंग, क्वालिटी, प्रोडक्शन जिसमें काम करना चाहे उसमें कर सकता है। गवर्नमेंट द्वारा एक प्रेस्क्राइब्ड रेट है, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम 7,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का हम स्टाइपेंड ऑफर करते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में इसको हम मिनिमम 15,000 रुपये से लेकर के 25, 35, 45 इवन 1 लाख रुपीज़ तक का कुछ केसेस में हम स्टाइपेंड दे रहे हैं पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए। साथ ही साथ सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, कंपनी से उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, यूनिवर्सिटी से उसको डिग्री, प्लस उसको फ्री में कंप्यूटर का ट्रेनिंग, फ्री में इंग्लिश का ट्रेनिंग डायरेक्टली फ्रॉम द IIT, एंड अगर विदेश जाना चाहते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन डायरेक्टली फ्रॉम द IIT मद्रास एंड IIT कानपुर। तो ये सभी बेनिफिट्स जो कि हम ऑफर कर रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट लें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे यहाँ का जो वर्किंग मॉडल है वो हम काम करते हैं। Rahul wants to make a career in a particular industry, but Rahul finds it difficult to clear his interviews. That's because Rahul lacks the skill set to qualify for the job. His lack of skills prevent him from securing the job he aspires for. Rahul learns about apprenticeship and decides to gain skills by becoming an apprentice. Rahul visits www.apprentices.in, registers for an apprenticeship program and begins applying for different apprenticeship opportunities. He also uses the time to gain capabilities in areas he was lacking in. Soon, Rahul is selected as an apprentice in a company that he applied to at apprentices.in. Initially, he is provided with the required training and the operating practices. Next, he is assigned to a senior with whom he quickly learns the practical aspects of the job. Very soon, Rahul moves on to managing larger tasks all by himself. Rahul is learning tremendously and earning a handsome stipend. As Rahul gains experience, he is now given more responsibilities and exposed to different facets of the job and the company. By the end of his apprenticeship, Rahul has a good understanding of the industry and the job role. He has now gained capability and the relevant skills that he lacked earlier. Now Rahul has the required qualifications to perform well at job interviews. And he can choose the best from the job offers that he receives. Rahul now has the dream job that he always aspired for. He now has the qualification, skill and capability to contribute and perform well. Rahul is smart. Be like Rahul. So Rahul is smart. Be like Rahul. Become an apprentice. Means trainee associate, trainee engineer. Start your career from day one. This is what the program we are developing. So now इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे भारत भर में हमें आप लोगों की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। हमें लीडर्स चाहिए, हमें स्टेट हेड्स, बिजनेस हेड्स और साथ ही साथ कैंपस हायरिंग एक्सपर्ट, फ्रीलांसर्स, एजेंट्स और हर तरह के एम्प्लॉय की हमें रिक्वायरमेंट है जो अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सके। ध्यान रखिएगा, हम तीन क्वेश्चन का आंसर देंगे, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम सैलरी और कम डेजिग्नेशन ऑलरेडी बता चुके हैं, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि नॉर्मली तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर, कभी कभी कैंडिडेट पूछते हैं कि सर इस जॉब में लीड कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि सर इसमें क्या कोई
फील्ड वर्क है। और थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि सर ये बताइए कि क्या इसमें कोई टारगेट है। ये 3 क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा। तो इसका हम आंसर आपको देना चाहेंगे और देन यू टेक द डिसीजन कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पहला क्वेश्चन हम आंसर देते हैं कि हम ये समझते हैं कि क्या इस जॉब में लीड कहाँ से मिलेगा। तो लीड बहुत सिंपल होता है कि नेटएप्स फाउंडेशन का ऑलरेडी लगभग 800 से ज़्यादा एकेडमिक पार्टनर्स हैं और हर एक हम डायरेक्टली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब फेयर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स के साथ एसोसिएट हुए थे। जो भी जॉब फेयर होता है उसमें हम एज एन एचआर के रूप में इनवाइट होते हैं। और अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो, अगर लेट सपोज आप मध्य प्रदेश में हो तो आप मध्य प्रदेश में जॉब फेयर अटेंड कर सकते हो, आप यूपी के हो तो यूपी में अटेंड करिए, आप बिहार के हो तो बिहार में अटेंड करिए, जो भी आपका लोकेशन है। तो डेफिनेटली पॉइंट ये है कि आपको जॉब फेयर के माध्यम से लीड बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि एक जॉब फेयर में ऑन एन एवरेज 1000 से ऊपर कैंडिडेट, 500 से लेकर के 1000 कैंडिडेट आते हैं। और जा करके जब आप वहाँ पे अधिक से अधिक बच्चों का आप डायरेक्टली रिक्रूटमेंट करके उनकी काउंसलिंग करके और उन बच्चों को सिलेक्ट करिए जो पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं, उनका लिस्ट बना करके और कंपनी के एचआर के साथ कोलैबोरेट करके उनकी ऑनबोर्डिंग करा दीजिए। और जब उनकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाए तो उनको फॉलो अप करिए कि डियर एज पर प्रॉमिस हमने आपको जॉब दे दिया और आपको ऑफर लेटर मिल गया, अब आप अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटी, हायर एजुकेशन की एडमिशन फॉर्मेलिटी, जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो, यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं हो, उसकी ज़रूर करो, नहीं तो फिर हमें मजबूरी में आपका ऑफर लेटर कैंसिल भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए उनको पढ़ाई करो। अच्छा, ये चीज़ें मैंडेटरी क्यों है? ये क्वेश्चन आता है कि ये पढ़ाई के साथ जॉब क्यों एक मैंडेटरी क्यों है? तो इसका एक रीज़न ये है कि देखिए जी, आजकल कंपनी में हम जब एम्प्लॉय हायर करते हैं, कैंडिडेट क्या करते हैं, आते हैं, ज्वाइन करते हैं, 4-6 महीने 1 साल काम करेंगे, छोड़ करके चल देंगे। ये हमारे लिए बहुत हेडेक होता है और कंपनी को भी नुकसान होता है, प्रोडक्शन का नुकसान होता है, उसका सेल्स डाउन होता है। तो ये जो एम्प्लॉय हैं ये छोड़ करके न जाएँ, कंपनी में एटलीस्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल रहें। इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया कि अब जो पढ़ाई करेगा उसको हम जॉब देंगे। अब चाहे जो पढ़ाई करो आप, बीटेक करो, एमटेक करो, पीएचडी करो, फार्मेसी करो, लेकिन जो भी पढ़ाई आप करोगे वो नेटएप्स कंपनी के माध्यम से ही होगा या तो उस कंपनी के माध्यम से होगा। उस नॉर्मली तौर पे वो हमारे क्लाइंट का टाई अप नहीं होता है, उसका टाई अप जो एकेडमिक पार्टनर का है वो नेटएप्स का होता है। तो नेटएप्स आपका एग्ज़ाम, क्लासेस, प्रैक्टिकल सब कुछ टेक केयर करेगा और मेक श्योर कि आपका टाइम पे एग्ज़ाम हो, टाइम पे क्लास हो, टाइम पे सैलरी मिले, टाइम पे आपको फूड, ट्रांसपोर्ट सब कुछ सुविधाएँ मिलती रहें। इन केस अगर 6 महीने के बाद आपको लगता है कि सर मेरी जॉब सही नहीं चल रही है, मुझे दूसरा जॉब चाहिए या सैलरी कम है या कुछ लायबिलिटी और बढ़ गई हैं, तो आप हमें बताइए, हम दूसरे कंपनी में आपको चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डेली बेसिस पे बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। अगर हमें लगेगा कि कोई एम्प्लॉय को सैलरी की ज़्यादा ज़रूरत है या कुछ और इश्यूज आ रहे हैं तो हम उस पर शिफ्ट कर देंगे। एक तो ये चीज़ें हो गई। तो लीड जनरेट करने का सिंपल तरीका ये है कि आप जॉब फेयर में पार्टिसिपेट कर लो, ऑलरेडी इनवाइटेड हो गए, आपको डायरेक्टली लीड्स वहाँ मिलेंगे। सेकंड तरीका ये होता है कि जो कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, वहाँ पे आप देखोगे इवन ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पे आपको बच्चों की भरमार है। तो किसी भी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट, अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हो और आपने MBA वगैरह किया है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, PG किया हुआ है, टॉकेटिव हो, तो आप डायरेक्टली वहाँ के जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे बात करिए। उनको बोले कि हाय, मेरा नाम लेट सपोज पिंटू भारद्वाज और मैं HR एंड करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट एट नेटएप्स कंपनी, हम अपने कंपनी के लिए फ्रेशर की हायरिंग कर रहे हैं और कैन यू कनेक्ट दिस कॉल टू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस। और वहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर क्या करिए, उनको बोलिए सर मेरे पास रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ सेंड मी योर ईमेल ID, आई विल सेंड यू द रिक्वायरमेंट टू यू। हम आपको रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं और आप हमें डेट और टाइम कंफर्म कर दिए किस डेट को आकर के मैं एक पहले प्री प्लेसमेंट टॉक करूँगा। और प्री प्लेसमेंट टॉक में हम बताएंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के बेनिफिट, इंसेंटिव एंड ऑल द थिंग्स, करियर प्लानिंग के बारे में। और जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे उनको हम फ़िल्टर करके नेक्स्ट डे या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद उनको हम डायरेक्टली गूगल मीट के ज़रिए से उनका फाइनल इंटरव्यू करेंगे। तो इस तरह से आप उनका डायरेक्टली कैंपस हायरिंग कर सकते हो। तीसरा तरीका ये होता है कि सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत अगर देखा जाए तो 10th 12th ITI डिप्लोमा के बच्चों को होता है। और अगर आज के डेट में एक इंटर कॉलेज में देखो तो 3-4 सेक्शन होते हैं, तो 12वीं मिला करके 200 से 250 बच्चे, 11-12 मिला करके लगभग 250 से 400 से 500 बच्चे होते हैं। तो अगर आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ोन करिए कि हेलो सर, मेरा नाम हिमांशु द्विवेदी है और मैं रिक्रूटमेंट एंड करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट एट नेटएप्स कंपनी। अब पर्पज़ ऑफ कॉल ये है सर कि नेटएप्स एक सोशल सर्विस मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है और हम विशेष तौर पे आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको हायर एजुकेशन भी देते हैं। जो बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो हम आपके कॉलेज में आकर के एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं कि
जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो वे कैसे नेटवर्क्स के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप ले सकते हैं और पढ़ाई अपने आगे की कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट है कि नेटवर्क्स कंपनी किसी भी तरह के पैसे की डिमांड नहीं करता, जो भी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी के साथ हम आपके कॉलेज में आकर के ये भी डिस्कशन करना चाहेंगे कि आपके कॉलेज का एडमिशन कैसे बढ़ेगा, प्लेसमेंट कैसे अधिक से अधिक होगा और डेफिनेटली आप उसका ब्रांड कैसे फ्री में ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट कैसे नेटवर्क्स के माध्यम से ले सकते हैं। तो आपको लगता है कोई कॉलेज मना करेगा? ऑफ कोर्स कोई कॉलेज आपको मना नहीं करेगा। 1% छोड़ करके 99% कॉलेज ऐसे होंगे जो कि बोलेंगे कि मोस्ट वेलकम है सर, आप आइए। अगर जब आप स्कॉलरशिप देने के लिए आ रहे हैं हमारे बच्चों को तो मोस्ट वेलकम है, आप आइए। नाउ जिस दिन उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया, टाइम दे दिया, आप उस पर्टिकुलर डेट और टाइम में वहाँ जाइए और 11th और 12th को एक साथ किसी हॉल में बुला करके उनको प्रेजेंटेशन देनी को समझाइए, उनको इम्पोर्टेंस बताइए कि आपको प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन या लर्निंग क्यों लेनी चाहिए। जैसा कि आज का मैं एक मेरी अभी आज के ही अपडेट मेरे पास आया है कि एक मेरा काउंसलर लाइव प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है। ओके, थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन हम देखते हैं। ओके, वन सेकंड। वन सेकंड। तो नाउ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसी तरह से अगर आप जो दूसरे और भी प्रेजेंटेशन बहुत सारे हैं, अगर आप उसको देखना चाहोगे तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो प्रेजेंटेशन हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम ध्रुविया, डायरेक्टर नेटवर्क्स कंपनी बेंगलुरु। एंड आज मैं आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रहा है कि आज मैंने अपना पहला जॉब फेयर स्पेशली इन ईस्टर्न रीजन में, उत्तर प्रदेश रीजन में किया, और जहाँ पे किया जय माँ भगवती पीजी कॉलेज, वो भी सेवा योजन क्षेत्रीय कॉलेज है जो आपका सोनभद्र में है, उसके आयोजन से किया। इसमें जो बेस्ट पार्ट ये है कि जो सपोर्ट मिला मिस्टर सुरन जी का, जो कि सो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग जो प्रोग्राम लर्न एंड प्रोग्राम के जरिए जब कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करते हैं, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू परफॉर्म, एंड इफ़ यू कैन डू इट देन यू आर मोस्ट वेलकम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कंपनी की वेबसाइट को ब्राउज करेंगे। तो हमने एक आंसर दे दिया कि लीड आपको कैसे मिलेंगे, दैट्स वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे मान लीजिए हमने 10 कॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, मैं रीवा का रहने वाला हूँ, मेरे रीवा डिस्ट्रिक्ट में 10 कॉलेज हैं और 10 कॉलेज को मैंने कवर कर लिया, तो हमें आराम से 8 से 10 दिन में मिनिमम 8,000 से 10,000 डाटा बहुत ईजिली मिल जाएंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर इतना डाटा आ गया तो फिर उसके बाद मैं करूँगा क्या, व्हाट वुड बी माई नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आफ्टर 10 डेज जब आपने अधिक से अधिक 5 या 10 जॉब फेयर अटेंड कर लिया, तो उसके बाद आपका फील्ड वर्क यहाँ से ख़त्म हो जाता है। आपका काम होता है कि आप 50 बच्चों की काउंसलिंग डेली बेसिस पे करेंगे अपने लैपटॉप को ऑन करके, क्योंकि जब अब आपके पास डेटा आ गया है और डेटा आपके पास लैपटॉप में है, डेटा आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में है, तो आप उस डेटा को उठाइए अपने टेबल से और एक-एक डेटा को अब आप इंडिविजुअली काउंसलिंग करिए, उनको समझाइए कि आप लोगों के पास, हमारे पास ये जॉब है, ये सैलरी है, ये बेनिफिट है और आप इसको ज्वाइन करो, और लेकिन आप क्या पढ़ाई करना चाहते हो उसकी कंफर्मेशन हमें अभी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं और उनका आप यस करिए और उनको कंपनी के एचआर के साथ कोलैबोरेट करके उनकी ऑनबोर्डिंग कराइए। तो 25 बच्चों की काउंसलिंग लंच के पहले और 25 बच्चों की काउंसलिंग लंच के बाद, तो आराम से आप 1 महीने में 1500 बच्चों का आराम से काउंसलिंग कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम जिस बच्चे को हर एक सुविधाएं दे रहे हैं, उसको खाने का, ट्रांसपोर्ट, सैलरी, पीएफ, ईएसआई, फ्री कंप्यूटर, फ्री इंग्लिश, सब कुछ दे रहे हैं, तो मेरा एक जनरल क्वेश्चन ये है सभी लोगों से कि आप ही बताइए कि 50 बच्चों की अगर हम
ईमानदारी से काउंसलिंग कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 50 में से मिनिमम कितने बच्चे होंगे जो पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए तैयार हो जाएंगे? हृदय शर्मा, आपको क्या लगता है, या पिंटू भारद्वाज? सर 50 में लगभग 10 तो आराम से कर लेंगे। ओके, सो अगर हमें 10 कैंडिडेट भी, या भारद्वाज कुछ बोलना चाहते हो? Yes, sir, 20 more than, sir. ओके, ठीक है। तो अगर हम 10 कैंडिडेट का भी कन्वर्जन कर रहे हैं 50 में से, तो 100 में से 20 हो गए। इसका मतलब कन्वर्जन रेट अगर हमारा 20% है, जहाँ पे हम महीने में 1500 बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, तो आराम से अगर आप सिंपल कैलकुलेशन निकालोगे, 20% ऑफ 1500 हो गया, लगभग 300 बच्चों का एडमिशन और प्लेसमेंट हो गया। तो व्हाट इज द पॉइंट टू टेल? पॉइंट टू टेल हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, यहाँ पे कोई टारगेट सिस्टम नहीं है कि आपको अब आपने 10% बोल दिया, 20% आपका कन्वर्जन हो गया तो आपको 300 बच्चों का करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने से आपका जो एफर्ट हो सके आप उसको करिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई क्लाइंट है, कोई कंपनी है, बोलता है कि सर मुझे अपने कंपनी के लिए 50 कैंडिडेट की, 10 कैंडिडेट की, 20 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, आपका काम ही है रिक्रूटमेंट करना है। आप किसी कैंपस हायरिंग को पार्टिसिपेट करके वहाँ से 20, 25, 50 बच्चों के एक साथ ही रिक्रूटमेंट करके कंपनी को भेज दो, राइट। तो यहाँ पर टारगेट सिस्टम नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप, हमारा जो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 20% भी कन्वर्जन मान के चलते हो, 20% अगर मिनिमम कन्वर्जन मान के चलते हो, तो जहाँ पे 300 बच्चों का एडमिशन और प्लेसमेंट हो रहा है, आप 20% करोगे तब भी फुल सैलरी, 10% करोगे तब भी फुल सैलरी, 5% करोगे तब भी फुल सैलरी। इवन आप 1% भी हमें कन्वर्जन करके, 1% कितना होता है, 1500 का 1% हो जाए लगभग 15 बच्चे, अगर वो भी आप हमें करके दे रहे हो तब भी हमें कोई चैलेंजेस नहीं है। आप अपना काम करते हुए और अपना पढ़ाई करते हुए जॉब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो 15 बच्चों का है तब भी हमें फुल सैलरी देना, कोई चाहे हमने आपसे प्रॉमिस किया 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर जो भी आप हम सैलरी डिसाइड कर लिए हैं तो उसको हम देंगे, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय हमें ऐसा मिल गया है कि भाई आपका काम है रिक्रूटमेंट करना, वही नहीं कर पा रहे हो, 1% भी रिजल्ट नहीं दे रहे हो, तो अगर परफॉर्मेंस लेवल 1% नीचे जाएगा तो उस एम्प्लॉय को हम ये कंसीडर करके चलेंगे ये फ्रीलांसर है, ये एक एजेंट या पार्ट टाइम के रूप में काम कर रहा है, तो उसको हम एक एज ए फ्रीलांसर के रूप में ही सैलरी पे आउट करेंगे। लेकिन उस मंथ में, जिस मंथ में उसका परफॉर्मेंस डाउन है, लेकिन अगले मंथ में जैसे उसका परफॉर्मेंस 1% ऊपर हो गया, उसको हम पूरी सैलरी रिलीज करते जाएंगे। तो दिस इज व्हाट हाउ वी डू वर्क। नाउ द थिंग इज कि अब सिंपल चीज़ ये है कि अगर हम अज्यूम करें कि मान लीजिए कि हम, चलो अभी हृदय जी ने बताया कि 20% कन्वर्जन होगा, हम चलो मान लेते हैं 10% हुआ। अगर 10% भी हुआ तो 10% का मतलब हो गया कि 150 बच्चों का प्लेसमेंट और 150 बच्चों का जॉब हम दे रहे हैं। अगर हम एक साल में कैलकुलेट करेंगे 150 के रेट से, तो 150 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1500 से 1800 बच्चों का ही हम प्लेसमेंट और जॉब दे पाएंगे। लेकिन मार्केट से हमने डाटा कितना पिकअप किया, 10 दिन में 10,000 डाटा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपने 10,000 डाटा पिकअप किया है और आपने कैंपस हायरिंग करके उठाया है, अगर आपको पूरे डाटा की काउंसलिंग करनी है, सबको जॉब देना है, तो मिनिमम आपके नीचे आपके सबॉर्डिनेट, आपके हेल्पर्स, जो एसोसिएट रिक्रूटर्स हो सकते हैं, उनकी संख्या मिनिमम 5 से 7 होनी चाहिए। तो आपके लिए ऑथराइज ये हो जाता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपने अंडर में 5 से 7 एम्प्लॉय मिनिमम रख सकते हो और उनसे काउंसलिंग और रिक्रूटमेंट का काम करा सकते हो, राइट। उनको टारगेट असाइन कर सकते हो, उनको रिपोर्टिंग ले सकते हो। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट। तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। बट ये जो टीम आपको एलोकेट होगी, टीम इनिशियली फर्स्ट मंथ ही एलोकेट नहीं हो जाएगी, पहले मंथ आप अपने इंडिविजुअली करोगे, अपना खुद का परफॉर्मेंस शो आउट करो, लीडरशिप का स्टाइल दिखाओ कि वाई यू आर ए लीडर, आपको टीम क्यों चाहिए। और हमें लगेगा कि 1 महीने में ही आपने जो बोला वो करके दिखा दिया, तो फिर हमें अगले महीने हम आपके लिए टीम रिक्रूटमेंट करके और ट्रेनिंग दे करके आपके अंडर में ऑनबोर्ड कर देंगे। या दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपके पास कोई टीम है और अगर आप चाहते हो को नेटवर्क को ज्वाइन करो, तो आप हमें बताइए और उसको हम ऑनबोर्डिंग कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी कैंडिडेट जो भी आप रिक्रूटमेंट करोगे अपने अंडर में, उसकी सैलरी आपकी सैलरी से कम ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। नाउ तो इम्पॉर्टेंट क्या रिजल्ट क्या निकल के आया कि जब हम एक महीने में मतलब पहले 10 दिन हमने कैंपस हायरिंग किया, अब पूरे साल भर बैठ करके 10,000 डाटा आ गया, तो कहीं पर जाने की जरूरत है नहीं, पूरे साल भर बैठ करके रिक्रूटमेंट और काउंसलिंग का काम किया, ऑफिस से चाहे घर से। तब आप ही डिसीजन लीजिए कि ये फील्ड वर्क है या फिर ये वर्क फ्रॉम होम या रिमोट ऑफिस जॉब है।
करेक्ट, दूसरा आंसर दे दिया। तीसरा आंसर ये होता है कि सर इसमें कोई टारगेट है, तो टारगेट हमने हटा दिया पहले से ही कि आप 20% करोगे तब भी फुल सैलरी, 1% करोगे तब भी फुल सैलरी। लेकिन 1% से नीचे जाएगा तो हम मान लेंगे कि आप एज एन एजेंट या फ्रीलांसर ग्रुप में काम कर रहे हो, या आप कहीं डुअल एम्प्लॉयमेंट में लगे हो, आप सीरियस नहीं हो, इस चीज़ को हम मान के चलेंगे, और वो आपके ऑफर लेटर में भी लिखा रहेगा। इसलिए अपना परफॉर्मेंस लेवल 1% से ऊपर रख के चलिए। नाउ द थिंग इज, हमारे यहाँ एक जो लास्ट है कि हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, प्लस टर्मिनेशन कल्चर नहीं है। जैसा हमने पहले बताया कि नेटवर्क्स कंपनी किसी भी तरह पैसे की डिमांड नहीं करती, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसलिए अगर हमें कभी पता चला कि कोई एम्प्लॉई से या किसी कैंडिडेट से आप एडवांस में पैसे मांग रहे हो, या कोई भी एम्प्लॉई मांग रहा है किसी कैंडिडेट से कि आप पैसे दीजिए तो आपको जॉब मिला करा देंगे, ये सब, तो अगर हमें पता चल गया फिर इमीडिएटली टर्मिनेशन होगा, नो सेटलमेंट एट ऑल। तो दिस इज व्हाट वी हैव डू, दिस इज द सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन, नथिंग एल्स देयर। ना अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसके बाद मैं सेकंड राउंड का कैसे प्रोसीजर होगा उसके बारे में बताएंगे। एनी क्वेश्चन? जी सर। सर एक बार ज्वाइनिंग का नहीं समझ पाया सर, ज्वाइनिंग कैसे होगी सर? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। अभी तक का जो हमने बताया जॉब रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है पूछिए। नो सर। नो क्वेश्चन? नो हृदयेश, सर। जी, कोई क्वेश्चन है आपका? बस यही भैया ने पूछा, यही हम भी जानना चाहते थे कि सैलरी ओके कैसे मिलेगी। ओके, ठीक है, मैं दोनों आंसर देता हूँ। नाउ द थिंग इज कि हमारे यहाँ जो अब सेकंड राउंड का होता है, देखिए इस मीटिंग के बाद आप अपना ईमेल आईडी हमें व्हाट्सएप के जरिए टेक्स्ट करेंगे, और हम आपको 3 फॉर्म भेजेंगे और डिटेल्ड में जॉब डिस्क्रिप्शन दोबारा भेजेंगे। जो भी अभी हमने डिस्कशन किया, यही जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दोबारा भेजा जाएगा। और जो हम बात कर रहे हैं इस बात की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप लोग यूट्यूब पे आधे घंटे 1 घंटे बाद देख भी सकते हो। कल का आपको ये डाउट ना हो कि सर ये मुझे बताया नहीं गया था इंटरव्यू में कि मेरा काम क्या होगा, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। तो इस चीज़ के लिए, रेफरेंस के लिए ये पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कल का आप एनी टाइम आप वीडियो पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। नाउ द थिंग इज, हम नट सेल में पहले ये डिफाइन कर दें कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको रिक्रूटमेंट, आपको कैंडिडेट की सोर्सिंग करनी है, और कहाँ से होगा? जॉब फेयर, कैंपस हायरिंग, कैंपस विजिट, या वेबिनार, सेमिनार, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपको स्किल्स आती है। अब आपको डायरेक्ट मार्केटिंग पसंद है तो दैट इज योर चॉइस। सर आप सेकंड उसके लिए जैसे कॉलेज हम कैंपस, सॉरी सर। जी बोलिए। हेलो सर। सर जी जैसे बोलिए कि हम बोलिए। कोई भी कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसकी लीड सर आप ही दोगे, हमें जनरेट करनी है जा करके? दोनों तरह से हो जाएगी, आपको भी, आप अपने से भी कर लोगे, हम भी दे देंगे, डोंट वरी। वो ट्रेनिंग का पार्ट है और बहुत आसानी होता है। हमारे पास ऑलरेडी टाई अप हैं कॉलेजेस के। बट जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हो, लेट सपोज आप रीवा से हो या बिहार से हो या पटना से, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, तो आपको कॉलेज का पता है, और अगर आपको मेल लिखना आता है, आपने MBA किया हुआ है, तो एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर को कैसे मेल करना है, अगर वो भी बेसिक नहीं पता है तो हम रेडी टू यूज मटेरियल देंगे। आप अपना नाम एडिट करिए, उनको प्रपोजल भेजिए। बट उनसे कैसे बात करनी है ये आपका लुकआउट है, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो, MBA हो, हमने आपके लिए इसीलिए हायर किया कि आप रिक्रूटमेंट मैनेजर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट एन ईमेल, करेक्ट? वो हमें सिखाने की ज़रूरत न पड़े। क्लियर? तो अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी नहीं है, और कैसे एक डायरेक्टर से, कैसे प्रिंसिपल से बात किया जाएगा, तो आई थिंक तब इस प्रोफाइल के फिट नहीं हो। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम आपको ये सपोर्ट करेंगे कि कौन सा कॉलेज में जॉब फेयर कर सकते हो, कहाँ पे कर सकते हो, लेकिन उनसे कैसे बात करना है, दैट इज योर लुकआउट। ओके? या कैंडिडेट, हाँ जैसे कि सर हम वहाँ कॉलेज विजिट करते हैं जा करके, जो हमारा सर कन्वेंस रहता है वो कौन देगा सर? कंपनी बियर करेगी। कंपनी बियर करेगी, ठीक है सर। जैसे कि सर कई स्कूल या कॉलेजेज ऐसे होते हैं जिनमें क्या है कि जैसे ITI है, उससे अपग्रेड यानी BTech भी कराते हैं, वो पॉलिटेक्निक भी कराते हैं। हम वहाँ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो बच्चे को हम गाइड कर रहे हैं कि आगे की तुम पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो इसमें हमसे कॉलेज टाइप नहीं करेगा ना, क्योंकि कॉलेज पहले से ही प्रोवाइड करा रहा है वो चीज, तो कॉलेज क्यों बच्चों को देगा? नहीं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात, कॉलेज हमें बच्चे इसलिए देंगे क्योंकि उसके बच्चों को प्लेसमेंट चाहिए, पॉइंट नंबर 1। जी सर।
उसको उसके फाइनल ईयर वाले बच्चों को प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है? जी सर। अगर उसको प्लेसमेंट लेनी होगी हम्म, तो हमें कैंडिडेट उसको देना पड़ेगा। नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, आप अपने अपने कैंडिडेट को अपने पास रखो, मैं दूसरे कॉलेज में विजिट कर लूँगा या मैं डायरेक्टली जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर लूँगा। क्लियर हो गया? हम्म। तो क्योंकि जैसे हम उस कॉलेज सर पे हमारा डिपेंडेंट जो नहीं है ट्रेनिंग कि सेशन, हाँ जी, जैसे कि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन चलेगा, ट्रेनिंग में जब हम चलेंगे तो सर हमें ऑन रोल करके ही तो चलाया जाएगा कंपनी से, या हम ऑफ रोल चल के पहले ट्रेनिंग देंगे, यानी कुछ आउटपुट अपना दिखाएंगे, उसके बाद में कंपनी हमें हायर डे वन करेगी, या से पहले काउंटिंग, हायर करने के बाद ना हम क्या सर? डे वन से काउंटिंग, डे वन से काउंटिंग। अगर ट्रेनिंग जिस दिन आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया उस दिन से आपकी सैलरी काउंट होना शुरू हो जाएगी। जी सर। क्लियर हो गया? जी ऑल सर। जी सर। राइट। एनी मोर क्वेश्चन? सर एक जी चीज और जानना चाहेंगे। जी। जैसे हम किसी बच्चे का एडमिशन आपके पास मोटिवेट करके भेजते हैं तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा? कोई चार्ज उससे पहले लिया जाएगा क्या? कितनी बार हमने बोला अभी आपको, आई थिंक यही आप दोबारा क्वेश्चन बोल रहे कि अभी बोला कि नेटैप्स नेवर आस्क फॉर एडवांस मनी, एडवांस पेमेंट। आप शायद इस जी चीज़ को दोबारा हमसे रिपीट करवा रहे हो, जबकि हमने इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया हेडलाइंस में। अभी हमने आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया कि हमारा एडवर्टाइजमेंट क्या है, पे आफ्टर प्लेसमेंट, यस और नो? ठीक है सर, तो हमने यही एडमिशन दिखाया के ना लिए कि जी जी हमने यही दिखाया एडमिशन ना के पे लिए आफ्टर प्लेसमेंट। जी जी तो फिर इस क्वेश्चन का मतलब नहीं बनता ना जो आप पूछ रहे हो मुझसे, जी। नहीं, यस आपकी और ही नो? शाखा से पहले बताया था तभी हमने पूछ लिया, क्योंकि हमारे साथी लोग भी वहाँ गए थे तो उन्होंने अभी फ्रेंचाइजी को बताया अगर आप था। हमसे बात कर रहे हो, अभी आप जी हमसे बात करो, हमने क्लियर कर दिया डाउट, राइट? दिस इज द सेकंड हाँ टाइम। सर। आई ओके थिंक सर। हमने प्रेजेंटेशन दे दिया, तो आई थिंक इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। नो सर। क्लियर? एनीवे, जी नाउ द थिंग इज नाउ द थिंग इज अब हम बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पे अटेंडेंस साइकिल क्या है, बिलिंग साइकिल क्या है, और सेकंड स्टेज होता है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होगा। हमारे यहाँ का अटेंडेंस साइकिल जो होता है वो 21 to 20, कोई भी न्यू एम्प्लॉय की जो ज्वाइनिंग होगी वो 18 को ज्वाइनिंग होगी, 18, 19, 20 3 दिन ट्रेनिंग चलेगी, 21 को आप पूरा अपने काम पे लग जाएगा। तीसरी चीज़ है उसी 3 दिन के अंदर उसका आईडी कार्ड, विजिटिंग कार्ड सब कुछ हैंड ओवर हो जाएगा। चौथी चीज़, ट्रेनिंग होने के बाद आप को एक रिपोर्टिंग मैनेजर एलोकेट होगा। आप डेली बेसिस पे बिना फेल हुए डेली रिपोर्ट करना, मेल के जरिए, कोई व्हाट्सएप के जरिए रिपोर्टिंग नहीं कंसीडर होगा, मेल के जरिए रिपोर्टिंग देना मैंडेटरी है। वीकली रिपोर्ट देना और मंथली रिपोर्ट वो भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। मंथली रिपोर्ट 20th ऑफ एवरी नाइट वो मैंडेटरी पहुंच जाना चाहिए। 20th को आएगा, 25th को आपका इवेल्युएशन होगा और जो भी कमिंग 7th आ जाएगा आपकी सैलरी रिलीज। क्लियर हो गया? तो अटेंडेंस साइकिल 21st to 20th और बिलिंग साइकिल आपका हो 7th to 10th ऑफ एवरी मंथ। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ओके। नो सर। नाउ नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है। ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम आपको, अगर आप इंटरेस्ट होंगे, अगर आपको लगता है कि आप ये काम कर पाओगे, अगर हमने आपको पूरे डाउट्स को क्लियर कर दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हम आपको स्टिल जॉब डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी भेज चुके हैं, कंपनी का वेबसाइट भेज चुके हैं, तो आप लोग उसको एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए। अगर आपको लगता है कि आप रिक्रूटमेंट, कैंपस हायरिंग, कैंपस काउंसलिंग का काम, टीम हैंडलिंग का काम, फ्रेंचाइजी सेटअप का काम, कॉर्पोरेट टाइप का काम ये सब कर सकते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम। अपना ईमेल आईडी टेस्ट करिए। हम आपको 3 फॉर्म भेजेंगे। एक होगा ज्वाइनिंग फॉर्म, फर्स्ट होगा गोल सेटिंग फॉर्म, सेकंड होगा ज्वाइनिंग फॉर्म, थर्ड होगा आईडी कार्ड फॉर्म। ज्वाइनिंग और आईडी तो सिंपल है। गोल सेटिंग फॉर्म क्या होता है? गोल सेटिंग फॉर्म में आप ये मेंशन करोगे कि आप फर्स्ट डेली क्या करोगे, वीकली क्या करोगे, मंथली क्या करोगे, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली क्या करोगे। पूरा प्लान आप हमें डिस्क्राइब करके देते हो, जिससे हम आपको डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि अगर एक बार आपने प्लान दे दिया कि हमारा ये प्लान है, इस तरह से मैं काम करूँगा, इतने बच्चों को मैं इस क्वार्टर में रिक्रूटमेंट करना है, इतने बच्चों की इतना काउंसलिंग करना है, इतनी मेरी टीम सेटअप होगी, इतनी मेरी फ्रेंचाइजी होंगी, इतने मेरे चैनल पार्टनर्स या कॉर्पोरेट टाइप होंगे, जो भी होंगे, उसको आप क्लियरली पिक्चर में डिस्क्राइब करते हो।
वही चीज़ मेंशन करिए जो आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी कभी भी टारगेट नहीं देती है, इसलिए आप वही चीज़ मेंशन करिए जो आप अचीव कर सको, क्योंकि मंथ के एंड में हम सिर्फ यही बोलेंगे अपना गोल सेटिंग फॉर्म दिखाइए और अपना फीडबैक फॉर्म आप सबमिट किए हो उसको दिखाइए। दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि आपने जो बोला था उसको अचीव किया या नहीं किया। तो यू हैव टू डिसाइड योर गोल, आई हैव टू सबमिट योर फीडबैक मंथली बेसिस, राइट। इन दैट केस ये कंपैरिजन का क्यों इंपॉर्टेंट है? कंपैरिजन इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये कंपैरिजन करेंगे कि आपने जो बोला है, अगर परफॉर्मेंस लेवल 1% से ऊपर है फुल सैलरी रिलीज, अगर परफॉर्मेंस लेवल 1% से नीचे है इमीडिएटली हम कंसिडर कर लेंगे कि दिस एम्प्लॉई इज वर्किंग एज ए फ्रीलांसर, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर नाउ? तो गोल सेटिंग फॉर्म भरना मैंडेटरी है, स्पेशली उन सभी के लिए जो लोग, चाहे वो फ्रेशर हों, चाहे वो टीम लीडर हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो, चाहे स्टेट मैनेजर हो, चाहे रीजनल हेड हो, इवन चाहे डायरेक्टर हो। दिस इज व्हाट द प्रोफाइल वी हैव सर्टेनली। तो 3 फॉर्म्स, उसके साथ ही आपको सेकंड फॉर्म और ज्वाइनिंग फॉर्म, अगर आपको लगे कि गोल सेटिंग फॉर्म आपने भर लिया है, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, हम उसको हेल्प करेंगे, हमारी टीम है उसको हेल्प कर देगी कि आपको कहाँ पे चैलेंजेस आ रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि गोल सेटिंग फॉर्म भरने के बाद ज्वाइनिंग फॉर्म मीन्स आप अपना पूरा डिटेल भरते हो, अपना डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करते हो। थर्ड होता है आईडी कार्ड फॉर्म। जब तीनों फॉर्म मिलने के बाद हम फाइनली आपसे डिस्कशन आधे 15 मिनट के लिए और डिस्कशन करेंगे सेपरेटली रिगार्डिंग योर फाइनल सैलरी, कितना इंसेंटिव, बोनस और अदर बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें दो कुछ बेनिफिट्स जो नेटवर्क कंपनी द्वारा दिए जाते हैं, वो बेनिफिट ये है कि हर एक कैंडिडेट को पढ़ने का मौका दिया जाएगा, वो अपना फीस EMI में दे सकता है, कोई इशू नहीं होगा। क्लासेस कंपनी के माध्यम से ही चलेंगी, प्रैक्टिकल्स कंपनी के में ही होंगे, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ जो सैलरी मिलेगी उसी सैलरी से वो फीस चाहे कटवा सकता है, चाहे अपने पूरी सैलरी मिलने के बाद अपने EMI में दे, अपने से ही दे, वो दैट इज देयर चॉइस। तो पढ़ने का मौका मिले। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कैंडिडेट अब्रॉड जाना चाहता है तो उसको फ्री में फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, वीज़ा रेडी कराना, स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर कंपनी को लेकर के आना और उसके लिए वीज़ा तैयार करवाना, और वो चीज़ें हम सपोर्ट करेंगे। अगर आप कल का 6 महीने के बाद और साल भर के बाद अगर आपको लगता है कि सर मुझे मैं चाहता हूँ कि अब नेटवर्क्स को क्विट करके मैं दूसरे कंपनी में जाना चाहता हूँ, अगर आप प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करोगे तो हम ही आपको दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर देंगे। ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड, प्रोबेशन पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर हमें लगेगा कोई एम्प्लॉई ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस लेवल 1% से कंटिन्यूसली फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बिलो जा रही है, उस एम्प्लॉय को हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई लगता है आप जॉब को समझ नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे, इसलिए बेटर ये है कि मैं आपको दूसरे कंपनी में अपने क्लाइंट के यहाँ या दूसरे डिपार्टमेंट में, नेटवर्क्स के इंटरनल डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे आप ये काम को करने की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ पे आप आसानी से दूसरा काम कर सको। कुल मिला के कहने का मतलब है कि नेटवर्क्स कंपनी टर्मिनेट नहीं करेगा कि आपका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, बल्कि हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देंगे, जहाँ पे आप उस काम को आसानी से कर सको। तो दिस इज द कंप्लीट रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू प्रोसीड, सैलरी डिस्कशन, एवरीथिंग हमने डिस्क्राइब किया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम डन विद दिस मीटिंग। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? No, sir. All right, so thank you, Hardesh, thanks Himanshu Dwivedi, and thanks Pintu Bharadwaj joining this meeting. And for more information, इस रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग इसको आधे घंटे बाद देख सकते हैं। और जो भी रिकॉर्डिंग हमने किया, ये आपके लिए रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग इसको रिमाइंड कराएगा कि आपको जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है वो क्लियर है नहीं। कल का ये क्वेश्चन उठा कि सर मुझे ये बताया नहीं गया था, राइट? ऑल राइट, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।